مجھے اپنی زندگیوں سے نکال دیا، میرے ساتھ ظلم کیا ہے کہ آج میں زندگی میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، میرا کوئی ہم سفر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے میرا حال دل سننے والا، میرے دکھ درد بانٹنے والا، میرے آنسو پوچھنے والا۔ یہ زمانے کی جفا ہے جس نے مجھے آج شرابی بنا دیا، نشے کے اندر دھت رہنے والا عادی بنا دیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ نے سنا تو آپ کی کتب کی ورق گردانی تھم گئی، آپ کی تلاوت رک گئی، اور پھر ساری رات وہ نوجوان ہڑبڑاتا رہا، وہ آواز نشے کے اندر دھت ہو کر وہ جملے کہتا رہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ سنتے رہے۔ بحر الدموع کے اندر امام ابن جوزی کہتے ہیں وہ نوجوان ساری رات شرابی تھا، میں تو شرابی کے قریب بھی نہیں بیٹھتا، کہیں مجھے شرابی نہ کہہ دیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے گناہ سے نفرت کرنا، گناہگار سے نفرت نہ کرنا۔ جب زخم سے نفرت کرو گے تو پھر پورا بدن ناسور بن جائے گا، یہ زخم اتنا بڑھ جائے گا کہ پورا بدن اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ لیکن جب تم زخم کا علاج کرو گے، بدن کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو پھر علاج ہوگا۔ ہم گنہگار سے نفرت کرتے ہیں، اور یہی نفرت انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ اللہ مان الحفیظ۔ گنہگار سے نفرت نہ کرو، گناہ سے نفرت کرو، اسے سمجھاؤ میرے بھائی یہ اچھا کام نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہر رات کو آتے ہیں شرابی کی گفتگو کو سننے کے لیے، اور ایک رات شرابی کی آواز نہیں آئی، امام اعظم بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ اتنے بڑے امام وقت صلی الفجر بوضوء العشاء 40 سنہ، 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی ہے۔ ہاں جی ایسے امامت نہیں ملتی ہے۔ ہاں جی ہم سمجھتے ہیں جی صبح کو رات کو خواب دیکھا، صبح کو امام بن گئے۔ محنتیں کی ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، علم کے لیے زانو تلمس طے کیا ہے، اور پھر ساری رات بیداری کے اندر گزارے ہیں، آنکھوں میں راتیں کاٹی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی کملی کا صدقہ وہ مقام عطا کیا کہ آج دنیا کے اندر فقہ حنفی کا وہ اجارہ ہے، وہ خوبصورت انداز ہے، جس دوسرے تیسرے شخص کو دیکھو وہ کہتا ہے میں امام اعظم کا مقلد ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا تھا۔ اور جب کوئی شخص وضو کرتا تو امام اعظم ابو حنیفہ ان کے وضو سے پانی جب بدن سے لگتا تو گناہ جو جھڑتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ان گناہوں کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ پیارے بھائی یہ آواز جو ہے نا تھوڑی سی ڈبل ہے، یہ بھی اگر کم کر دیں، ناراض نہ ہو تو سادہ کرو، تھوڑا سادہ آواز کر دیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ جب میں تیرے نبی کی امت کے یہ گناہوں کو جھڑتا ہوا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اور یہ مجھے برداشت نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ یا اللہ یہ کشف کی دولت مجھ سے اٹھا لے، میں تیرے نبی کی امت کے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میرے اندر وہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ جب رات کو نہیں سنتے آواز تو پھر ساری رات کروٹ بدلتے بدلتے گزر جاتی ہے، بے چینی اور بے قراری میں گزر جاتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے میرے امام باہر نکلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر گزرنے والے راہ گزر سے راہگیر سے پوچھتے ہیں بتاؤ نا یہ ہمارے پڑوسی کا کیا حال ہے۔ ساری رات وہ آوازیں نکالا کرتا تھا، وہ عربی میں اشعار کہا کرتا تھا، اور ہم سراپا سماعت بن کر سنا کرتے تھے۔ رات اس کی آواز نہیں آئی تو انہوں نے کہا وہ رات شراب کے نشے میں دھت ہو کر وہ چل رہا تھا، گلیوں کے اندر شرطا آیا، پولیس والا آیا، پکڑ کر اس نے جیل میں ڈال دیا۔ میرے امام نے صبح کی نماز ادا کی، فلم من صرف من صلاۃ الصبح، جب صبح کی نماز سے لوٹے نا میرے امام تو لاکھوں سلام میرے امام کے اس عمل پر، اس روش پر، اس انداز پر۔ میرے امام سیدھا جو ہے اس پولیس والے کے دروازے پہ گئے، دروازے پہ دستک دی، اور دستک دے کر میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے جب دستک دی تو اس نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا کون ہے آپ؟ آپ نے فرمایا مجھے نعمان بن ثابت الکوفی کہتے ہیں۔ اور جب اس نے سنا نا تو وہ جوتے پہننا بھول گیا، سر کو ڈھانپنا بھول گیا، دوڑا آیا اور دروازے کو کھول کر سامنے جب امام کو دیکھا تو قدموں سے لپٹ گیا، کہنے لگا میں کتنی قسمت والا، آپ میرے گھر میں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میرا پڑوسی ہے، شرابی ہے، رات تم نے اسے پکڑا ہے، کوئی اس کا حال پوچھنے نہ آتا، میں ہی آ گیا، چلو اس کا حال پوچھنے آتا ہوں، میں ہی حال پوچھ لیتا ہوں۔ جب اس نے سنا اس نے کہا حضور آپ میرے دروازے پہ چل کے آئے ہیں تو آپ کے آنے کے تصدق میں شرابی کو بھی چھوڑتا ہوں، اور اس رات میں نے جتنوں کو پکڑا تھا سب کو چھوڑتا ہوں۔ اور جب شرابی کو رہا کیا گیا تو وہ جھکی نظروں کے ساتھ امام اعظم کے قریب آتا ہے۔ میرے امام فرماتے بتاؤ زمانے نے تمہارے ساتھ جفا کی ہے؟ ہم نے تو نہیں کی ہے۔
तो वो रोकर लिपट गया, कहने लगा हुजूर आपने इतना सोना अमल किया, मैं तौबा करता हूं आज के बाद न शराब को हाथ लगाऊंगा न शराब के जाम को करीब आने दूंगा। और फिर अल्लाह ताला ने वो मकाम अता किया कि विलायत के मनसब तक पहुंचा। तो पैगाम क्या है? पैगाम ये है वअमुर बिल मारूफ, नेकी की लोगों को दावत दे, लोगों को जितना हो सके। सुल्तानुल आरिफीन फरमाते तस्बीह फेरी तेरा दिल ना फेरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हो यार, दाने गिर रहे हैं लेकिन किसी की झोंक आबाद ना होगी। तेरी सजदों के अंदर कसरत है लेकिन किसी का दिल अल्लाह की तरफ तेरी वजह से माइल ना होगा, किसी के अंदर इबादत का ज़ौक़ और शौक़ तेरी वजह से पैदा ना होगा। तो मुझे बता तेरे इस हम्द व सना और तेरे सजदों को अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह को तेरे सजदों की जरूरत नहीं है। अल्लाह क्या चाहता है? वअमुर बिल मारूफ, लोगों को नेकी की दावत दो, वन्हा अनिल मुनकर, और जहां तक हो सके लोगों को बुराई से रोको। मेरे भाई ये अच्छा काम नहीं है, ये बुरा काम है। फरमाए जब तुम रोकोगे, तुम्हारा काम है रोकना, आगे अल्लाह ताला की मर्जी है, आगे अल्लाह ताला जानता है कि इसने माना है या नहीं माना, वो खुद जाने और उसका हबीब जाने। और फरमाया वस्बिर अला मा असाबक, फरमाया फिर जो तुम्हें मुसीबत पहुंचे उस पर सब्र करो। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया जो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप है ना, वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। 3 से 4 अहादीस मैंने अर्ज करनी है, तवज्जो मेरी तरफ रखें। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, फरमाया ये तुम्हारी मां बूढ़ी मां और ये तुम्हारा बूढ़ा वालिद, ये इनके साथ दुनिया के अंदर तुमने जितना जिंदगी के लम्हे गुजारने हैं, इन लम्हों के अंदर हमेशा इनके साथ हुस्न सलूक करना, नेकी करना, बिछ जाना, वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्म, जितना हो सके इनकी कदर करना, कभी उफ तक न कहना, तुम्हारे लहजे के अंदर तलखी ना आए, तुम्हारी आंखों के अंदर कभी सख्ती ना आए, तुम्हारा लहजा हमेशा नरम होना चाहिए, मिठास उसके अंदर होनी चाहिए, शहद की तरह मीठा होना चाहिए। और जब तुम अपनी अम्मा से अपने अब्बे से बात करो तो फिर बार बार भी अगर वो तुमसे पूछे किसी बात के लिए तो तुम उन्हें बार बार जवाब दो। फरमाया वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, फरमाया तुम्हें अल्लाह हुक्म ये देता है जितना जिंदगी के लम्हे तुम्हें अल्लाह ने अता किए हैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारा बूढ़ा वालिद तुम्हारे पास मौजूद है, इनकी कदर करो, इनकी खिदमत करो। जो मकाम तुम्हें सजदों से ना मिलेगा, वो मकाम जो तुम्हें अल्लाह ताला की हम्दो सना से नहीं मिलेगा, लेकिन एक दफा माँ ने और बूढ़े वालिद ने दुआ कर दी ना, अल्लाह ताला तुझे उस मकाम तक पहुंचा देगा जिसका गुमान भी तुम्हारे जहन के अंदर नहीं होगा। और मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो सहाबी आए, बड़ी कमाल की हदीस पाक है, मैं तो हैरान हो गया। वो लोग जो सैकड़ों सफर करके, सैकड़ों मील सफर करके, कई 100 किलोमीटर दूर जाकर फिर भी वो सवाब और अजर हासिल नहीं कर सकते जो उन्हें घर में मुयस्सर है। मेरे हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी अश्तहिल जिहादा, मेरी ख्वाहिश है, मैं जिहाद करना चाहता हूं, मैं दुश्मन के सामने तलवार निकाल कर उनकी गर्दनें काटना चाहता हूं, अपने जिस्म को जख्मों से चूर चूर कराना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आपके दीन के लिए मेरे बदन के ऊपर तलवार के जख्म आए, मेरे बदन के अंदर तीर पेवस्त हो जाएं, और जब मुझे जख्म लगेंगे, मुझे दर्द होगा, तो इधर से मेरा रब मेरे ऊपर रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। इन्नी अश्तहिल जिहादा, मैं जिहाद करना चाहता हूं, लेकिन या रसूल अल्लाह वला अक़दिरु अलैह, ख्वाहिश है लेकिन इसको अमली जामा नहीं पहना सकता, जिहाद करने पर कुदरत नहीं रखता हूं, जिहाद करने के लिए मैदान जंग में जा नहीं सकता। पता है मेरे हुजूर ने जवाब क्या दिया? सुनिएगा, आप अल्लाह बाद वाले हैं, अल्लाह करे कि आप अल्लाह बाद वाले बन जाएं, आबाद वाले बन जाएं, अल्लाह ताला का जिक्र करके अपने सीनों को अल्लाह के जिक्र से आबाद करने वाले बन जाएं। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब सहाबी की रोदात सुनी, आप बीती सुनी, जब उसका दर्द सुना, उसकी फुगा सुनी कि उसकी तड़प थी, या रसूलल्लाह मैं जिहाद करना चाहता हूं लेकिन वला अक़दिरु अलैह, मैं इस पर कुदरत नहीं रखता हूं, मेरे हुजूर ने जुमला क्या बोला? जिहाद के लिए जाओ, तुम्हें सौबतें उठानी पड़ेगी, तुम्हें मुशक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें अपने बदन पर जख्म के सेहरे सजाने पड़ेंगे, हो सकता है कि तुम्हें मौत की आंखों में आंखें डालकर खड़ा होना पड़े, तुम्हें खून की नदियां बहानी पड़े, हो सकता है कि तुम्हारे बाजू कट जाए,
हो सकता है तुम्हारे पांव कट जाए, हो सकता है तुम्हारे चेहरे का ये हुस्न जो है वो जख्मी और मुतासिर हो जाए। जिहाद के अंदर जा रहे हो तो फिर जान हथेली पे लेकर जाओ। संगलात जमीन है, चट्टाने हैं, नुकीले पत्थर है, हर तरफ से तीर चल रहे हैं, तलवारें चल रहे हैं, गोलियां बरस रही हैं, और उसके अंदर इंसान जो है वो जान हथेली पे लेके अर्ज करते हैं, मालिक जान तो तूने दी है, जान दी तूने है, तो फिर हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। या अल्लाह मैं जान देख लेकर आया हूं तेरे नबी के दीन पर कुर्बान करने के लिए, इतना तकलीफें उठाकर फिर जिहाद होता है। लेकिन वो सहाबी कहता है या रसूलल्लाह मैं जिहाद करने पर कुदरत नहीं रखता। मेरे हुजूर ने फरमा हल बकिया मिन वालिदैका अहदुन, ये बताओ कि तुम्हारी अम्मा या अब्बा में से कोई एक या दोनों जिंदा है? वो जिहाद की बात कर रहा है और हुजूर किस तरफ लेकर जा रहे हैं मुझे बताइए। जो सऊदी अरब इमारात, दुबई के अंदर, मस्कत में, और इसके अलावा बैरूत, लबनान, यूरोप के अंदर जहां भी जाते हैं दौलत के हुसूल के लिए, पीछे बूढ़े माँ बाप को भूल गए। वो बूढ़ी आंखें इंतजार करते करते थक गई, इंतजार करते। हर ईद के ऊपर माँ को दिलासा दिया बेटे ने, अम्मा मैं बस आ रहा हूं, और बूढ़ी माँ थक गई। आखिरकार उसका जनाजा उठा और फिर बेटे को माँ का जनाजा भी नसीब न हुआ, और फिर बाद मर्ग के वफात के बाद कब्र से लिपट के रो रहा है। आज वो आया है, आज तेरे आने का फायदा क्या? बता ये दौलत तुझे माँ वापस लौटा सकती है? ये दौलत तुझे, ये चमक तुझे, माँ का वो लम्स तुझे दोबारा लौटा सकती है? ये दुनिया की रंगीनियां क्या तुझे वो माँ की वो खूबसूरत छाएं, वो खूबसूरत दुआएं, वो खूबसूरत चेहरा दोबारा दिखा सकती हैं? नहीं दिखा सकती। आज माँ है, आज बाप है, इनकी कदर करो। वो किसी ने क्या खूब कहा किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ। तो मुझे बताएं मां की कदर कितनी की है। काबा के रब की कसम, सारी कायनात मिल जाए, मां ने जो 9 माह तक अपने पेट में रखा और फिर तुझे अपने बदन का खून पिलाया, और तुझे तेरे बदन के इस चमन को सेंचा अपने बदन के खून के साथ। 9 माह के तवील अरसे के अंदर वो ला हासिल, ना खत्म होने वाली मुश्किलात के से नबुर्द आजमा होकर जब 9 माह का तवील अरसा गुजरा, अब ज़ज्की का वक्त आया, विलादत के मरहले आए, अब तो क़यामत सुगरा है। अब इस पेट से एक बच्चे का निकलना, बस लगता था सांस टूटने वाली है, लगता था बस आंखें बंद होने वाली है, लगता था दाई बार बार कह रही है जल्दी करो, इसको होश में लाओ, वगरना कुछ भी नुकसान हो सकता है। मां ने मुश्किलात के समंदर उबूर करके मुझे और आपको जन्म दिया, और मां हत्ता के होश से बेहोश होने वाली थी, अक्ल और खैरत से बेहोश होने वाली थी, बेगाना होने वाली थी। अचानक जब बच्चा पैदा हुआ और बच्चे के मुंह से जब आवाज निकली ना, चीख निकली, तो मां सारा दर्द भूल गई, चेहरे पर मुसर्रत की वो लहरें आ गई, और मां झूम कर कहने लगी मेरा बच्चा मेरी गोद में सुलाओ, मैं चूमना चाहती हूँ। वो सारा दर्द भूल गई, सारी तकलीफ भूल गई। वो एक शख्स आ गया अब्दुल्ला बिन उमर के पास, या रसूल, ऐ अब्दुल्ला बिन उमर, मैंने अपनी अम्मा को अपने कांधों पे उठा के हज कराया है, ये बताइए हल अद्दई तो हक कहा, क्या मैंने मां का हक अदा कर दिया? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया काबा के रब की कसम, जब मां तुझे जन्म दे रही थी, जो एक एक लम्हा दर्द में डूब कर उसने गुजारा था, तू तो एक लम्हे का भी हक नहीं अदा कर सका। मुझे बताइए फिर हम किस हक के साथ मां को गालियां देते हैं? ये हक हमें किसने दिया है? हम माँ को बुरा भला कहते हैं, माँ को धक्के देकर घर से निकाल दिया। माँ आज ओल्ड होम के अंदर रह रही है, आज माँ जो है वो एक सरकारी इदारे के अंदर, प्राइवेट इदारे के अंदर अपनी जिंदगी की गिनी चुनी सांसें जो है वो पूरी कर रही है। मुझे बताओ क्या उस माँ की आह नहीं निकलेगी? माँ की सिसकियां नहीं निकलेगी? क्या रात की तन्हाइयों के अंदर रोते हुए वो अपना तकिया जो है वो आंसू से लबरेज ना करती होगी? क्या वो रोकर ना कहती होगी या अल्लाह क्या इसलिए मैंने इसको पैदा किया था, इसलिए मैंने इसको जन्म दिया था, 9 माह तक पेट में रखा था, आसमान भी लर्ज उठता है, कांप उठता है। अल्लाह फरमाता देखो ये बंदा किस कदर गाफिल है, किस कदर नाहंजार है, जो अपनी मां की कदर नहीं कर सका, वो मोहम्मद के रब की क्या कदर करेगा? क्या आपने नहीं देखा सोशल मीडिया पर एक बेटा जो है वो बीवी के कहने पर मां को थप्पड़ मार रहा है? तो फिर बताइए पाकिस्तान के अंदर तूफान आए या ना आए? पाकिस्तान के अंदर फिर बहरान आए या ना आए? फिर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो या ना हो?
क्यों, वजह क्या है? ज़हर अल फसाद फिल बर्रे वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। फसाद तो होगा, ये हमारे आमाल हैं, हमारे करतूत हैं। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। इकबाल कहते हैं, हजार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफीक, यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक। मुरीद सादा तो रो रो के हो गया ताइब, खुदा करे कि मिले शेख को भी ये तौफीक। मुझे बताइए, इकबाल कहते इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। सजदा खालिक को भी, इबलीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। मां की कदर नहीं की और दोस्तों से हंस हंस के बातें कर रहा। बाप के लिए टाइम नहीं है और यार बेली आ गए तो सारी सारी रात जाग कर आंखों में काट दी। तो बताएं जरा, ये तेरी बनावट है, ये तेरा तसन्नो है, ये तेरी रियाकारी है, ये तेरा कारोबारी मुस्कुराना है। हकीकत ये थी कि तेरी मां तुझसे तलख लहजे में बात करती तो तू फिर भी नरम लहजे के अंदर जवाब देता। बाप तुझे गुस्से के साथ, हत्ता के फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा। अल्लामा अलाउद्दीन बिन इब्राहिम अल बगदादी ने तफसीर खाज़िन के अंदर उफ़्फ़िन के तराजिम माने बयान करते हुए एक माना यह बयान किया कि अगर बाप ने नुकीले पत्थर उठाकर तुम्हारे चेहरे पे मार दिए, वो नुकीले पत्थर तुम्हारी जिल्द के अंदर जब चुभे तो तुम्हारे मुंह से जो निकला ना उफ कहा, तब तुम बाप के सामने उफ भी ना कहो। मुझे बताइए फिर मैं और आप कहां खड़े, ये मुआशरा कहां खड़ा है? मुझे बताइए, हजारों मिलाद भी मनाए जाएं लेकिन बूढ़ा बाप फिर भी भीख मांग रहा हो, तो मुझे बताओ मुझे मिलाद मनाने का फायदा मिले? मैं हजारों बच्चों को चिल्ड्रन हाउस बनाकर बच्चों को स्कूल के अंदर फ्री तालीम दूं, लेकिन मेरा बाबा कशकोल हाथ में लेकर चौक के ऊपर, चिश्तियां फुवारा चौक के ऊपर कशकोल हाथ में लेकर खैरात मांग रहा है। क्या मेरा बच्चों को तालीम दिलवाना, तालीम देना, टीचर रखना क्या मुझे फायदा देगा? मेरे अपने घर में तो आग लगी है, मैं दूसरों को रोशनी क्या बांटूंगा? मेरा खुद का घर जो है वो अंधेरे के अंदर गिर चुका है, मैं दूसरों को रोशनी क्या बांटूंगा? पहले अपने आप के बारे में सोच। इकबाल कहते अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। या रसूलल्लाह मैं जिहाद नहीं कर सकता, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर जिहाद नहीं कर सकते तो बताओ क्या तुम्हारी अम्मा या अब्बा ये दोनों कोई जिंदा है? अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी अम्मा जिंदा है। अब मेरे हुजूर ने जो जुमला बोला ना, हाथ बांध के अर्ज करूंगा, बहुत कमाल का जुमला। मेरे हुजूर ने फरमाया फस्अलिल्लाह फी बिर्रिहा, फस्अलिल्लाह फी बिर्रिहा। फरमाया उनके कदमों को धो धो कर भी, उनके साथ उसने सलूक कर, टूट कर प्यार कर। वो एक जुमला बार बार कहे, तेरे कानों पे गिरा ना गुजरे तो बार बार जवाब दे, फस्अलिल्लाह, अल्लाह से मांगता रहे और उनके साथ नेकी करता रहे, हुस्न सलूक करता रहे। तो फरमा क्या होगा? मेरे हुजूर के ये जुमले, मैं कहता हूं आबे हयात से भी ऊपर कोई चीज होती तो उससे लिखने के काबिल है। मेरे हुजूर ने फरमा अंत हाजिन, फरमा तू हाजी है। तू क्या है? तू हाजी है। मैं जाऊं हज करूं, पता नहीं मेरा हज कबूल हो या ना हो, मिना में जाऊं, मुज़दलिफा में जाऊं, अरफात में जाऊं, जहां भी जाऊं, लेकिन पता नहीं है मनासिकात हज पूरी तरह अदा हुए या नहीं हुए, मैं हाजी बना हूं या नहीं बना। लेकिन हुजूर फरमाते जब तूने मुस्कुराकर मां का चेहरा देखा, जब मां के कदमों को चूमा, जब मां की खिदमत की है, मां के पांव को दबाया है, उनके कदमों को धोकर पानी पिया है, अंत हाजिन, सुन जरा, फरमाया तू यूं समझ ले कि तू हाजी बन गया है, तूने हज कर लिया है। वह मुअतमिरुन, और तू उम्रा कर लिया है तूने। और फरमाया वह मुजाहिदुन, यूं समझ ले तू मैदान कारजार के अंदर दुश्मनों के साथ जंग भी लड़ चुका है, तू मुजाहिद बन गया है, क्योंकि तूने मां की कदर की है, मां की खिदमत की है। मैं जब छोटा सा था, सन 2000 के अंदर, मेरा छोटा भाई उस वक्त दूध पीता था, मेरी मां का इंतकाल हुआ सन 2000 के अंदर। तो मेरे वालिद गिरामी जो है उन्होंने मेरी अम्मा की कब्र के कतबे पर एक खूबसूरत शेर लिखवाया था, वो बड़ा कमाल का शेर था। मेरे वालिद गिरामी ने शेर लिखवाया था, अभी जामे उमर भरा न था, अभी जामे उमर भरा न था, कफे दस्त साकी झलक पड़ा, रही दिल की दिल में हसरतें के निशान कज़ा ने मिटा दिया। इंसान की क्या ख्वाहिशात होती है। मेरे हुजूर ने फरमाया हाजी बनना है तो फिर मां की कदर कर, मां की खिदमत कर, उम्रा करना है मां की खिदमत कर, और अगर इसी तरह मुजाहिद बनना है तो मां की खिदमत कर। एक शख्स आ गया हुजूर की बारगाह में, अर्ज करने लगा मा हक़्क़ुल वालिदैन अलल वलद, हुजूर बताएं वालिदैन के औलाद पर हुकूक कितने हैं, कौन सा हक है औलाद पर, माँ बाप का हक क्या है?
تو میرے हुजूर ने फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुका, वो दोनों अम्मा भी वो अब्बा भी वही तेरी जन्नत है। अगर मेरा ये जुमला समझ जाए ना, मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई है। इसी पर ही बात खत्म कर दूं तो बात मुकम्मल है। हुमा जन्नतुका, आज तक उलमा ने यही बयान किया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन मेरे हुजूर फरमाते हैं हाँ हाँ ये बात भी अपनी जगह सही है, लेकिन इससे ऊपर की परवाज कर। हुमा जन्नतुका, तेरी अम्मा तेरी जन्नत है। क्या बात, समझे मेरी बात? हुमा जन्नतुका, तेरा अब्बा तेरी जन्नत है। और फरमाया अगर तू उनकी कदर करे, अगर तू उनकी फरमाबरदारी करे, अगर तू उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आए, तो तेरी अम्मा तेरी जन्नत, तेरा अब्बा तेरी जन्नत। और फरमाया सुन व नारुका, और अगर तूने अम्मा और अब्बा की नाफरमानी की है तो समझ ले यही अम्मा और यही अब्बा तेरे लिए जहन्नम बन गए, यानी जहन्नम में जाने का सबब और जरिया बन गए। फरमाया अगर माँ और बाप नाराज है तो फरमाया, जिस तरह किबला मुफ्ती साहिब में जब आ रहा था तो बयान कर रहे थे, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया आपने इतना बड़ा मकाम कैसे हासिल किया? तो आपने फरमाया सर्दियों की ठंडी रात के अंदर मेरी माँ ने मुझसे पानी मांगा और पानी मौजूद नहीं था, तो फरमाते फतलब्तुमान, मैं पानी लेने के लिए मैं दूर गया। सर्दियों की ठंडी रात के अंदर मैंने पानी लिया और जब प्याले के अंदर भर कर आया तो मेरी अम्मा सो गई थी, आंख लग गई थी। फरमाते मैं पानी लेकर खड़ा रहा, वो पानी के चंद कतरे मेरी उंगली पे पड़े तो फरमाया वो बर्फ बन गए, और हत्ता के फरमाया मेरी जिल्द फट गई, और जिल्द फटने से खून बहने लग गया और खून बहा। और जब मेरी अम्मा जागी तो मेरी अम्मा ने मेरे हाथों के अंदर पानी का प्याला देखा तो मेरी अम्मा ने फरमाया बेटा तुम रख कर चले जाते। तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने अर्ज की अम्मा तुम मांग रही थी और मैं मौजूद ना होता, आप अगर रूठ जाती तो फिर रब भी रूठ जाता, रब भी नाराज हो जाता, तो मुझे ये डर दामनगीर था। हजरत बायजीद बुस्तामी की अम्मा ने दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह बायजीद की अम्मा इससे राजी है, तू भी राजी हो जा। बस ये जुमले कहने की देर थी। अल्लाह ताला ने तमाम अहले असर के अंदर, हम असर के अंदर जो बायजीद को वक्त जो मकाम अता किया वो किसी को अता नहीं किया। बिल्कुल इख्तितामी जुमले। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो एक शख्स आ गया हुजूर की बारगाह में, या रसूलल्लाह इन्नी अज़नबतु ज़ंबन अज़ीमा, गुनाहगार, मैंने बड़ा गुनाह कर लिया, बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। या रसूलल्लाह मुझे तो नहीं समझ आती कि मेरे गुनाह की माफी भी होगी, इसकी तौबा भी है, हल्ली मिन तौबतिन, क्या मैंने जो गुनाह किया इसकी तौबा भी हो सकती है, तलाफी मुमकिन है, क्या मुझे माफ किया जा सकता है? मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हल्लका मिन उम्मिका, बेटा कुछ देर के लिए आप तो खामोश हो जाए, हल्लका मिन उम्मिका, तवज्जो मेरी तरफ। उसने कहा इन्नी अज़नबतु ज़ंबन अज़ीमन, हुजूर मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। अब हुजूर फरमाते जाओ वुजू करो, रकातें 2 रकात पढ़ो, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो। मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। नहीं, सिहाबी की अकीदा रख के आया था, मेरी मुश्किल का हाल हुजूर के दर से मिलेगा। और फिर मेरे हुजूर ने भी खाली नहीं लौटाया, हाँ जी मैं तो अल्लाह का आजिज बंदा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, देने वाला तो अल्लाह है। हाँ जी देने वाला अल्लाह था, ये सिहाबी का भी अकीदा था, ये मुस्तफ़ा का भी अकीदा था, लेकिन सिहाबी का साथी ये भी अकीदा था मुश्किल जब भी आ जाए दरे मुस्तफ़ा पे आ जाओ, तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाए, परेशानियां हल हो जाएगी। उसने कहा या रसूलल्लाह इन्नी अज़नबतु ज़ंबन अज़ीमन, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, हल्ली मिन तौबतिन, मुझे तो नहीं समझ आती कि इसकी तौबा हो, आप बताएं क्या तौबा है मुमकिन? मेरे हुजूर ने फरमाया हल्लका मिन उम्मिका, क्या तेरी अम्मा है? अर्ज की या रसूलल्लाह नहीं है। मेरे हुजूर ने फरमाया अच्छा ये बता तेरी अम्मा की बहन है? तेरी अम्मा की बहन है? अर्ज की या रसूलल्लाह हाँ हाँ अम्मा की बहन है। मेरे हुजूर ने फरमाया चलो अम्मा न सही, अम्मा की बहन सही, उसी के साथ हुस्न सलूक कर, और जब तो हुस्न सलूक करेगा तेरी माँ के कलेजे को ठंड पड़ जाएगी, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा, तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। और आखिरी जुमला हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का, मुस्लिम शरीफ का, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जा रहे हैं जंगल में, सहरा में, जहां भी सफर कर रहे हैं, लकियहु रजुलुम मिनल अअराबी बितरीक़ मक्का, मक्का के रास्ते के अंदर एक देहाती मिल गया, आराबी था, गुंजलक बाल है, चेहरे पर गर्दो गुबार है, फटा पुराना लिबास है और चला आ रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अपने गधे मुबारक पर सवार है, चले जा रहे हैं। और जब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने उसे देखा ना, सल्लमा अलैहि अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा ओ हजरत जी आ जाइए जी, आ जाइए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आ जाइए जी, आ जाइए, अस्सलामु अलैकुम, मेरा सलाम कबूल कीजिए। अचानक इतना मीठे लहजे में बात की, वो जो साथ थे ना इब्न दीनार, मैं हैरान हो गया, न ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को जानने वाला,
یہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ان کی آپس میں ملاقات، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر تو ایسے مل رہے ہیں جیسے سالوں پرانی ان کی یاری ہو، محبت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سلام پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ نے کیا کیا، وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ، اس کو اپنے گدھے مبارک پر بٹھا لیا، اپنے گدھے مبارک پر بٹھا لیا، اور اسی پر بھی اکتفا نہیں کیا۔ اگلا جملہ سنیے گا، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً، اپنا امامہ اتارا، اس دیہاتی کو پہنا دیا، اپنا امامہ اتارا اس دیہاتی کو، پھٹے پرانے لباس والا، چہرے پر مٹی کی گرد ہے، تہ جمی ہوئی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر امامہ اتار کر اس کے سر پہ رکھ رہے ہیں۔ کانت علی رأسی، جو آپ کے سر پر تھا وہ آپ نے اس دیہاتی کو پہنا دیا۔ ابن الدینار کہتے ہیں میں نے کہا، جو ساتھی ساتھ تھے، ہم نے کہا اصلحک اللہ، اللہ آپ کی اصلاح فرمائے عبداللہ بن عمر، انہم الاعراب، یہ دیہاتی ہیں، یردون الیسیر، تھوڑا سا بھی کچھ دے دیتے نا یہ راضی ہو جاتے ہیں، یہ دیہاتی ہیں، یردون الیسیر، یہ تھوڑے پہ بھی راضی ہو جاتے، اور آپ نے جو ہے نا یہ کرم نوازی کر دی، امامہ پہنا دیا، پھر گدھے مبارک پر بٹھا دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گدھا مبارک بھی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو آگے سے پتہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا جواب دیا، کہا ان ابا ھذا کان ودودا لعمر بن الخطاب، اس دیہاتی کا جو بابا تھا نا وہ میرے بابے کا دوست تھا۔ ان ابا ھذا کان ودودا لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا ابا جو تھا نا میرے ابے کا یار تھا، بیلی تھا، اور میں نے سنا ہے میرے حضور سے، فرمایا اگر تمہارا والد دنیا سے چلا جائے، اگر اس کے کلیجے کو ٹھنڈ دینی ہو تو جو اس کے یار ہوں، بیلی ہوں، دوست ہوں، ہاں جی، جو اس کے ہم نوا ہوں، ہم پیالہ ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسے قبر کے اندر قرار ملے گا، چین ملے گا۔ تو پتہ یہ بھی لگا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا نا، تو میرے حضور گوشت اکثر بنوا کرنا حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجا کرتے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں بھیجا کرتے، اور پھر حضرت عائشہ نے پوچھا حضور آپ اتنا تحفے بھیجتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ میری خدیجہ سے پیار کرتے تھے، میری خدیجہ ان سے پیار کرتے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے، اللہ نہ کرے جس کی ماں دنیا سے چلی جائے، جس طرح قبلہ حضرت صاحب ہے، تو ان کی جو والدہ کی سہیلیاں اس پنڈ کے اندر چک میں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو ماں کی کلیجے کو، ماں کی روح کو قرار ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ کاری صاحب کی والدہ صاحبہ وہ پہلے ہی جنت میں ہے، اللہ جنت کے اندر اعلیٰ درجات عطا فرمائے، اور یہ ہر سال اپنی والدہ صاحبہ کی ایصال ثواب کی محفل کا انعقاد کرتے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور سرکار کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ کوئی میرا جملہ